welcome back to my YouTube channel. My name is Navneet Kaur. So I am finally back with a new video on this channel for you all people after a very long time, and I know that you all guys have to wait for this much long time, so I really apologize for that. But at the same time, I'm also grateful to all my viewers and subscribers for showing me so much of love and support uh, to my videos on this channel. So I'm really thankful, and I want to thank each one of you from the bottom of my heart. Okay, so I will try my level best to continue making videos for you all and to post videos on a regular basis, right? Okay, so as far as this particular video is concerned, as you have read the topic in the title of this video, that we are going to discuss the difference between correlation and regression. So again, this topic is related to the statistics subject, right? The reason that why I have come up with this video is that I have observed that lately you people have shown much interest in my statistic related content. Plus, many of you have also commented in the past to create a video on the difference between correlation and regression. So I decided to come up with this video, and I will try my best to explain you the topic in a simpler and easier manner in order to make you people understand the concepts and to retain it for a very long time. Okay, so first of all, I would like to tell you that this video is going to be helpful and useful for all those students who are planning to appear in the UGC NET examination, also in the PhD entrance examination, and the students who are in the 11th and 12th who are reading their statistics subject for the very first time. This video is going to be really helpful for all of them. Okay, so in this video we'll do not cover the numerical portion, we will cover only the theoretical part, where we'll be discussing the basic concept and the basic difference between these two terms. The main motive is to make you understand the concept, so that in future whenever anybody asks you, right, what exactly is the difference between correlation and regression, so you'll be able to answer them correctly. This is the main motive of creating this video, right? I hope you find this video useful as well as informative. Do watch it till the end, right? And if you have any suggestions for me for creating videos in the upcoming time, do let me know in the comment section below. Plus, if you have any doubts, you can also mention them there only. Okay, so yes, before moving further, I would like to tell you that if you want more such content, right, on this channel, do subscribe to it, and if you like this video, do hit the like button. So without any further delay, let's get started. Okay, so let us discuss now the difference between correlation and regression. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, राइट? विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. देन वी विल मूव फर्दर and we'll discover the different points of differences between these two. Okay, so first of all let us take two variables. Okay, so correlation and regression, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये स्टैटिस्टिक के टर्म्स हैं, राइट? एंड स्टैटिस्टिक में हम जब रिसर्च करते हैं उस केस में when we want to conduct a research and we study some variables, right, ताकि हम results को derive कर सके, उस केस में the correlation and regression are the concepts which are used. Okay, so first of all यहाँ पर correlation और regression two variables और more than two variables के ऊपर हम use कर सकते हैं. For the sake of simplicity we will just take two variables only here. Okay, so let us talk about now first of all correlation. Okay, so the first variable is suppose income and second is expenditure. So when income increases, expenditure increases, right? You all know कि हम जब हमारी income increase होती है, so at the same time हमारा जो expenditure होता है वो भी increase होता है, right? So correlation is all about establishing the relationship between two variables और more than two variables. अगर आप जो भी variable study कर रहे हो and उनके बीच में you want to find out is there any kind of relationship, आप जानना चाहते हो उसमें कोई relationship है या नहीं है, अगर है तो कैसा relationship है. So उसी को find out करने के लिए, उसी को establish करने के लिए, उसी को determine करने के लिए we use the concept of correlation. So here income और expenditure दो variables हैं. इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होता है. सो कोरिलेशन इज़ ऑल अबाउट एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, राइट? बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपको सिर्फ इतना याद रखना है दैट कोरिलेशन हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग
whether the variables are correlated to each other or not. What kind of relationship exists between the variables. Okay. नाउ आपने रिलेशनशिप बता दिया कि कोरिलेशन मीन्स दो वेरिएबल्स में जब कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं. नाउ रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, व्हेन वी हैव टू वेरिएबल्स जिसमें से एक वेरिएबल होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर वेरिएबल विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उस केस में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज़, द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ में चेंजेस आते रहेंगे एंड हाउ इट विल इफेक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, हम यहाँ पर रिग्रेशन में ये डिटर्मिन करते हैं. राइट, सपोज इनकम और एक्सपेंडिचर के वेरिएबल्स को ही हम यहाँ पर लेते हैं. अगर सपोज इनकम आपकी 100 है एंड एक्सपेंडिचर इज़ 40, अगर इनकम इंक्रीज होती है टू 110, द एक्सपेंडिचर बिकम्स 60. राइट, व्हेन इनकम फर्दर इंक्रीजेज टू 120, द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज टू 70. सो it means that the variables are positively related to each other. इनकम जैसे इंक्रीज होती है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता जाता है. राइट, एंड आपने यहाँ पर देखा हम यहाँ पर वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं. फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ इनकम, राइट, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर एंड दिस वैल्यू इज़ एस्टिमेटेड वैल्यू. राइट, दिस इज़ अ एस्टिमेशन बिकॉज यहाँ पे कुछ भी एक्चुअल नहीं होता. रिसर्च हम करते हैं, स्टडी कंडक्ट करते हैं, रिजल्ट्स डिराइव करते हैं, ऑल आर जस्ट एस्टिमेशन. हम एस्टिमेट करते हैं, उसके बेसिस पे ही हम रिजल्ट्स को डिराइव करते हैं. तो सिंपली जब आपके पास इनकम की वैल्यू है, एक वेरिएबल की आपके पास वैल्यू है, उसमें जब चेंजेस आते हैं एंड यू विल फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द अनदर वेरिएबल, दिस इज़ कॉल्ड रिग्रेशन. So regression is basically finding out the values, the probable or the estimated values. Correlation is the first step. Correlation में आपने find out किया कि क्या variables में कोई relationship है या नहीं है. अगर है and वो यहाँ पर cause and effect का relation है, मतलब एक variable dependent है, second is independent है, उस केस में उनकी values क्या होंगी, आप estimated values find out करते हो. That is the process which is followed in regression, right? Okay. So here income is independent variable and expenditure is dependent variable, right? Expenditure जो है वो आपका income पे dependent है. So regression में हम क्या करते हैं, we make estimated values of the variable. So this is a simple and one line basic difference between correlation and regression. कि correlation में हम variables को study करते हैं, उनके relationship को find out करते हैं एंड वो रिलेशनशिप जब हमें मिल जाता है उसके बाद अगर हमें वेरिएबल्स के बीच में एस्टिमेटेड वैल्यू देखनी होती है, एक वेरिएबल की वैल्यू पे जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिपेंडेंट होती है तो उसकी वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज़ कैलकुलेटेड इन रिग्रेशन. राइट, रिलेशनशिप इज़ कैलकुलेटेड हियर, वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रिग्रेशन. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. सो for the further clarity, first of all correlation में क्या होता है, we establish the relationship between two or more than two variables, right? हमने अभी पढ़ा. next यहाँ पर क्या होता है, relationship can or can not be that of cause and effect. so first of all this is the very important point that correlation में आपका जो variables में relationship होगा it can or can not be that of cause and effect. नाउ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता क्या है, इट मीन्स जब आपका एक वेरिएबल कॉज होता है एंड सेकंड वेरिएबल इफेक्ट होता है, मतलब एक वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड सेकंड जो वेरिएबल होता है वो आपका उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है. जब ऐसा कोई सिनेरियो होता है, वेरिएबल्स में ऐसा कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ कॉज एंड इफेक्ट. नाउ इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वेरिएबल्स हमेशा कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू ही रिलेटेड हैं आपस में. Sometimes it can also happen that variables are not having cause and effect relationship but still they are related to each other. Suppose आपने वेरिएबल देखे यहाँ पर टी प्रोडक्शन, ओके, एंड राइस प्रोडक्शन. ओके, लेट मी टेक अनदर स्लाइड. ओके, टी प्रोडक्शन, ओके, द प्रोडक्शन ऑफ टी एंड राइस प्रोडक्शन. हम यहाँ पर पास्ट 6 मंथ्स का डेटा ले रहे हैं. सपोज़ आपने देखा कि जो टी की प्रोडक्शन है वो 600 मिलियन टन्स थी, ठीक है, देन इंक्रीज़ हो गई 700, देन 800. सिमिलरली आपने राइस प्रोडक्शन में देखा 550 थी, ओके,
After that it went to 700 and then it went to 950. सो आपने देखा यहाँ पर ओवर द पास्ट 6 मंथ्स दोनों ही वेरिएबल्स में क्या हुआ, देवर यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन है. क्या रिलेशन है कि टी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, राइट, इट इज़ इंक्रीजिंग. राइस का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है. सो इट मीन्स द वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर. बट क्या ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है? क्या टी की प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होने की वजह से राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है, या फिर राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने से टी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है? नो. There may be another third factor which is contributing to the increase in the production of these two quantities, these two commodities. कि टी में भी, टी की प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ हो रहा है, राइस की प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ हो रहा है. सो देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि रेनफॉल अच्छी रही होगी, इसकी वजह से दोनों ही प्रोडक्शन जो है वो अच्छी गई पास्ट 6 मंथ्स में. सो यहाँ पर वेरिएबल्स आर रिलेटेड बट देयर इज़ नो कॉज एंड इफेक्ट. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. सो इट मीन्स कोरिलेशन में वेरिएबल्स अगर आपस में रिलेटेड हैं, सो दैट रिलेशनशिप कैन बी कॉज एंड इफेक्ट और इट कैन नॉट बी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर कैन बी कोरिलेशन विदाउट रिग्रेशन. सिंपल है. इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को ही कैलकुलेट करो. इट इज़ जस्ट यू कैन जस्ट फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड यूर गुड टू गो, राइट. आपने वहीं स्टॉप कर दिया स्टेप. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोरिलेशन के बाद आप रिग्रेशन फॉलो ही करो. यू जस्ट वांटेड टू एनालाइज द रिलेशनशिप और वो आपने कर लिया. दैट इज़ द एंडिंग ओनली. सो कोरिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट रिग्रेशन. आई होप दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द काउंटर पार्ट्स ऑफ दीज 3 पॉइंट्स इन केस ऑफ रिग्रेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़, अगर कोरिलेशन में हम 2 and more than 2 वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं, सो रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, वी प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर वेरिएबल. यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, वन इज़ इंडिपेंडेंट एंड वन इज़ डिपेंडेंट. नाउ ये हमेशा ही ऐसा होगा, रिग्रेशन में हमेशा ही वेरिएबल्स में रिलेशन होगा कॉज एंड इफेक्ट का. एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, ये हमेशा होगा. यू ऑलवेज हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके, उसी केस में हम वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर एक वेरिएबल की वैल्यू डिपेंडेंट होगी दूसरे के ऊपर तभी हम वैल्यूज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट. सो रिग्रेशन इज़ ऑल अबाउट एस्टिमेटिंग द वैल्यू और प्रेडिक्टिंग द वैल्यू. ओके, यहाँ पर हम वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर इज़ ऑलवेज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. नाउ कोरिलेशन में हमने पढ़ा था कि कॉज एंड इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इन रिग्रेशन देयर इज़ ऑलवेज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अदरवाइज रिग्रेशन आप वहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं कर सकते जहाँ पे वेरिएबल्स में कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, राइट. इफ़ देयर इज़ कॉज एंड इफेक्ट इट मीन्स वन वेरिएबल इज़ डिपेंडेंट एंड द अदर वेरिएबल इज़ इंडिपेंडेंट. सो यहाँ पर हमेशा ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है. लेट सपोज प्राइस एंड डिमांड. नाउ प्राइस एंड डिमांड में क्या होता है, व्हेन यू इंक्रीज द प्राइस डिमांड विल गो डाउन, राइट, एंड व्हेन यू डिक्रीज द प्राइस डिमांड विल गो अप. सो यहाँ पर क्या है, प्राइस और डिमांड में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है. प्राइस में चेंजेस आने से डिमांड में चेंजेस आते हैं. सो प्राइस इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हेयर एंड डिमांड इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल हेयर. सो इन दिस केस आप यहाँ पे अगर प्राइस के आपके पास गिवन वैल्यूज़ हैं, उस केस में आप डिमांड की वैल्यूज़ को जब एस्टिमेट करोगे इट मीन्स यू आर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन. सो वेरिएबल्स हमेशा ही उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ regression is always based on correlation. This is the most important point, right. regression कभी नहीं हो सकता जहाँ पे correlation नहीं है, until and unless variables are correlated to each other, right. So only then you will be able to find out the regression, or you can say you will be able to apply the concept of regression, right. बिकॉज जब वेरिएबल्स में रिलेशन ही नहीं होगा तो आप रिग्रेशन का कंसेप्ट अप्लाई कैसे करोगे. और रिग्रेशन का कंसेप्ट अप्लाई कहाँ पे होता है, जब वेरिएबल्स में कॉज एंड इफेक्ट होता है, राइट. इट मीन्स द वेरिएबल्स आर हैविंग अ रिलेशनशिप. और वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ कब, कहाँ से, जब आपने उसके ऊपर कोरिलेशन का कंसेप्ट अप्लाई किया, राइट. सो कोरिलेशन इज़ द बेसिस ऑफ रिग्रेशन. इट मीन्स बिना कोरिलेशन के आप रिग्रेशन का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन कोरिलेशन जो है वो विदाउट रिग्रेशन चल सकता है. Fine, I hope these 3 points are clear to you and these are very much important points. Okay,
सो नाउ हम चेक करेंगे कि कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में हम डिनोट कैसे करते हैं, राइट। वेरिएबल्स में अगर आपस में उनमें कोई कोरिलेशन है या फिर रिग्रेशन है, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिलेशन। सो आपको ये माइंड में रखना है कि कोरिलेशन इज ऑलवेज यूज टू मेजर द डायरेक्शन एंड डिग्री बिटवीन द वेरिएबल्स, ओके, डायरेक्शन एंड डिग्री। नाउ डायरेक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, एंड डिग्री इज these are the degrees. सो डायरेक्शन हमें बताएगा कि वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। हमने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल पढ़ा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, उसमें क्या था, व्हेन इनकम इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज। सो दोनों वेरिएबल्स में क्या रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस एंड डिमांड में क्या रिलेशन होता है, नेगेटिव कोरिलेशन, राइट, नेगेटिव। प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाता है, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। एंड सेकेंड इज डिग्री। डिग्री हमें बताता है कि कितना ज़्यादा, यानी टू व्हाट एन एक्सटेंड द वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। अगर हाई डिग्री है, इट मीन्स एक वेरिएबल के चेंज होने में दूसरे वेरिएबल में जब चेंज आता है तो ज़्यादा चेंज आता है, दैट इज़ द रिलेशनशिप इज़ ऑफ हाई डिग्री। अगर ज़्यादा चेंज नहीं आता है, मॉडरेट लेवल का है, तो मॉडरेट डिग्री। अगर बहुत ही कम चेंज आता है वेरिएबल्स में तो वो क्या हो जाता है, लो डिग्री। And when the variables are not at all correlated to each other, it means there is absence of correlation and the value will be 0. Okay, so these are the degrees as well as direction. So इन्हें use कैसे करेंगे हम? The correlation is denoted by small r. Okay, just give me a minute. Okay, small r. Suppose variables are x and y. So r x y is equal to, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि डायरेक्शन और डिग्री क्या है। सपोज वैल्यू रहती है 0.65। सो दिस इज, इट मीन्स वेरिएबल्स आर हैविंग अ पॉजिटिव रिलेशन एंड इट इज़ ऑफ मॉडरेट डिग्री बिकॉज द वैल्यू लाइज हेयर। 0.65 आपका लाई करता है बिटवीन 0.25 एंड 0.75। अगर 0.75 से 1 तक वैल्यू जाती है, इट मीन्स दैट इज़ ऑफ हाई डिग्री। नेगेटिव है तो सेम। एंड अगर वो 1 रहती है वैल्यू, इट मीन्स दैट देर इज़ परफेक्ट कोरिलेशन। सो कोरिलेशन की जो वैल्यू रहती है, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन +1 एंड -1। ओके, सो यहाँ पर इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं जाती, +1 से ज़्यादा नहीं जाती, +1 से लेस नहीं होती वैल्यू। फाइन। सो कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल r x y. Okay, so this is how you identify the degree and direction of the relationship that exists between two variables. Now let us come to regression. अब रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, रिग्रेशन में हम इक्वेशंस का यूज़ करते हैं. ओके, इक्वेशंस का यूज़ करके विल ट्राई टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यूज़. अब यहाँ पर आपके दो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें से एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है. उस केस में हमारे पास टू इक्वेशंस आ जाती हैं. ओके, सो फर्स्ट इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x. इट मीन्स व्हेन y इज डिपेंडेंट ऑन x, व्हेन x इज इंडिपेंडेंट. एंड सेकेंड इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y, व्हेन x is dependent on y, that is y is independent variable here. So in that case यहाँ पर दोनों ही cases में हमारे पास ये equations आती हैं. So after calculating the values of a and b, right, if we talk about the first equation जहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी होती है which is dependent on x, तो x की हर एक given वैल्यू के लिए हम जब y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे with the help of this regression equation. Okay, similarly अगर x की वैल्यू y पे डिपेंडेंट होती है, सो फॉर एवरी गिवन वैल्यू ऑफ y वी विल कैलकुलेट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x. तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं वो इक्वेशंस की हेल्प से करते हैं. नाउ हम यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन में नहीं जाएंगे कि कैसे इक्वेशंस यूज़ होती हैं, कैसे कैलकुलेशन होता है. वी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर, राइट. कंसेप्ट को समझना है कि आपने कोरिलेशन में क्या किया. कोरिलेशन में आपने सिंपल, आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है जिसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि वेरिएबल्स में रिलेशन कैसा है, राइट, पॉजिटिव, नेगेटिव, एज वेल एज उसकी डिग्री क्या है. सिमिलरली रिलेशनशिप को एग्जिस्ट जब आपने इस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद अगर आपको वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल की एस्टिमेटेड वैल्यूज़, उस केस में हम रिग्रेशन इक्वेशंस का यूज़ करते हैं. ओके, with the help of the equations we will be able to find out the estimated values of the dependent variable for a given value of the independent variable.
I hope this is clear. This is how we proceed in correlation as well as in regression. Okay. Now let us understand some more points of differences between these two terms. Now correlation is it helps in finding out the direction and degree of the relationship between the variables. हमने अभी पढ़ा. Next is variables are interchangeable. Now ये क्या concept है? देखो correlation में अगर आप two variables को study कर रहे हो, so variables are interchangeable. If you talk about rxy, it means you are talking about relationship between x and y. So relationship between x and y is always equal to relationship between y and x. कोई difference नहीं है. x और y में relation क्या है, y और x में क्या है, दोनों same बातें हैं. It means you can interchange the variables here, because यहाँ पे कोई dependent नहीं होता है, कोई independent नहीं होता है. So इसीलिए variables are interchangeable here. Okay. Next point is a numerical value is used to represent the relationship between the variables. हमने अभी पढ़ा r हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है विच लाइज बिटवीन +1 एंड -1. सपोज वैल्यू इज 0.25, सो यहाँ पे क्या होगा, -0.25 है लेट सपोज. सो दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन प्लस ऑफ लो डिग्री, राइट. ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव एंड लो डिग्री कोरिलेशन. सो एक वैल्यू की हेल्प से हम रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. नाउ कोरिलेशन आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल कैसे होता है, हम ये स्टडी कर ही क्यों रहे हैं, हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्यों इस्टेब्लिश कर रहे हैं. वाई, बिकॉज इट हेल्प्स द इकोनॉमिस्ट, द बिजनेसमैन इन टेकिंग डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. सपोज आपको पता है कि प्राइस एंड डिमांड में क्या रिलेशन है, कि हम जब प्राइस इंक्रीज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट का, सो उसका जो डिमांड रहेगा, मार्केट डिमांड, वो डिक्रीज़ हो जाएगा. सो जो बिजनेसमैन होगा उसे ये बात पता है, उसे पता है प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है. इसकी हेल्प से वो डिसीजन लेगा, डिसाइड करेगा कि उसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना है इन ऑर्डर टू चेंज द डिमांड, राइट. अगर उसको चाहता है कि डिमांड ज़्यादा बढ़े, सो ही क्या करेगा, वो प्राइस को डिक्रीज़ कर देगा, बिकॉज उसे पता है प्राइस के डिक्रीज़ होने से डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, राइट. So ultimately correlation helped that businessman in taking decision for his business, right. So correlation का ultimate objective क्या होता है, for making informed decisions. I hope this is clear. Now let us come to the counterparts of these 4 points in case of regression. First is अगर correlation आपका direction और degree बताता है, तो regression क्या बताता है, finding out the average change किस में, इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, कब, फॉर अ यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे ही आप यूनिट बेसिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस लाते हो, उससे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आता है ऑन अ एवरेज बेसिस, राइट. ये हम आइडेंटिफाई करते हैं रिग्रेशन के केस में. जैसे कि हमने बताया था, हमने जो वेरिएबल्स लेते, सपोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट. These are dependent and independent. Income is independent variable and expenditure is dependent on income. तो जैसे इनकम की वैल्यूज आप इंक्रीज करते जाते हो, तो एक्सपेंडिचर की वैल्यू में क्या चेंज आता है ऑन एवरेज बेसिस, वो हम फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ रिग्रेशन. सो आपको ये टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी सी लर्न रखनी है, बिकॉज एग्जाम में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक कोरिलेशन इज हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग व्हाट, एस्टैब्लिशिंग द डायरेक्शन एंड डिग्री, and regression is helpful in establishing the nature of the relationship. यहाँ पे हम nature को identify करते हैं, right. So this is the thing. Now let us come to the next topic, next point. Results vary when variables are interchanged. Very important point. Correlation में variables को आप interchange कर सकते हो, but regression में आप variables को interchange नहीं कर सकते. Correlation में rxy is equal to ryx, because x और y में रिलेशन जो रहेगा वही सेम y और x में रहेगा. बट रिग्रेशन में यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है. अगर x आपका सपोज डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, आप उनको इंटरचेंज नहीं कर सकते. अगर आप x को इंडिपेंडेंट बना रहे हो, y को डिपेंडेंट बना रहे हो, इन दोनों ही सिनेरियोज में आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, राइट. सो यहाँ पे व्हेन वेरिएबल्स आर इंटरचेंज, रिजल्ट्स मे चेंज, रिजल्ट्स एक्चुअली चेंज. सो यहाँ पे आपका जो रिग्रेशन रहता है उसमें आप वेरिएबल्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसमें हमेशा ही आपका एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा एंड अदर वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा. बट कोरिलेशन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स को इंटरचेंज
कर सकते हो। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज़ लाइन ऑफ बेस्ट फिट हेल्प्स इन प्रोडिक्टिंग द वैल्यूज़। अब यहाँ पे जो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी, राइट, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स और x इज़ इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये क्या है? जब इस इक्वेशन की हेल्प से आप वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करोगे, यू विल बी एबल टू गेट अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट लाइन इज़ कॉल्ड एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। फॉर एवरी गिवन वैल्यू ऑफ x वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y हेयर and for every given value of y we will calculate the value of x here. okay, so correlation में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ करते हैं टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप और टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। एंड रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए वी यूज़ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ओके, जैसे कि सपोज यहाँ पर आपने जो इक्वेशन यूज़ किया y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस केस में हम जो इक्वेशन की हेल्प से जब पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, राइट। इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन बट द लाइन विल ऑलवेज बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अगर आप इस इक्वेशन का यूज़ कर रहे हो। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। सो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग प्रेडिक्शंस। अगर कोरिलेशन में आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो रिग्रेशन में हम क्या करते हो, प्रेडिक्शन करते हो। प्रेडिक्शन कैसे? लेट सपोज बिजनेसमैन है, उसने प्रेडिक्ट करना है कि अगर अपने बिजनेस में कॉस्ट अगर वो इतनी रखता है तो उसके बेसिस पे सेल्स कितनी होगी। उसे ये पता है कि कॉस्ट एंड सेल्स में रिलेशन होता है, जो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ से, कोरिलेशन पढ़ के। अब उसकी हेल्प से वो चाहता है टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ इन ऑर्डर टू मेक प्रेडिक्शंस। वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा, राइट। अगर कॉस्ट मेरी इतनी रहती है तो सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उस केस में अब यहाँ पे बिजनेसमैन क्या कर रहा है, ही इज़ मेकिंग प्रेडिक्शंस, राइट। प्रिडिक्ट कर रहा है वैल्यूज़ को, अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेना चाहता है तो प्रिडिक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर पास्ट में ऐसा था, एक पर्टिकुलर लेवल पे मेरी जब कॉस्ट थी तो सेल्स कितनी होगी, तो फ्यूचर में क्या होगा। सो प्रेडिक्शन इज़ ऑलवेज मेड फॉर फ्यूचर, राइट। सो यहाँ पे कोरिलेशन क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एंड रिग्रेशन क्या करता है, प्रेडिक्शन में हेल्प करता है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो लेट अस नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोर कंसेप्ट क्लैरिटी, कि अगर आपके पास यहाँ पे डिफरेंट लाइंस रहती हैं, आपको लाइंस दी जाती हैं, ग्राफ की हेल्प से आप बता सकते हो कि वैल्यूज़ वेरिएबल्स में कोरिलेशन क्या है। सपोज़ अगर आपने जो रिग्रेशन आपने यूज़ किया, राइट, इक्वेशन की हेल्प से आपने जो पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट किया, एंड यूल गेट अ लाइन लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर सपोज़ आपने दोनों ही इक्वेशंस को यूज़ करके जब आपने पॉइंट्स को प्लॉट किए, आपने एक ही लाइन यहाँ पर देखी। मतलब दोनों ही इक्वेशंस को जब आपने पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट किया तो आपकी एक लाइन बनी। इट मीन्स दोनों यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं लाइन्स। उस केस में क्या होगा, सपोज़ ये इक्वेशन आपकी y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स और x इज़ इक्वल टू a प्लस बी वाई। सो जब ऐसा सिनेरियो होता है कि दोनों ही हमारी रिग्रेशन जो लाइंस रहती हैं वो कोइंसाइड करती हैं, इट मीन्स जो r है उसकी वैल्यू क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन है, राइट, 1। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इट मीन्स वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर लाइंस ऐसे जा रही हैं एंड वो कोइंसाइड कर रही हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, सो इन दैट केस द कोरिलेशन इज़ परफेक्टली नेगेटिव, द वैल्यू विल बी -1। अब मतलब रिग्रेशन लाइंस की हेल्प से वेरिएबल्स में कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। थर्ड इज सपोज आपके जो रिग्रेशन लाइंस हैं, सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, दिस it means here the value of correlation is 0. It means correlation is absent and the variables are not at all related to each other. So यहाँ पर अगर आपकी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस, रिग्रेशन लाइंस, इट मीन्स कोरिलेशन जो है वेरिएबल्स में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सपोज़ अगर आपकी रिग्रेशन लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो गैप है वो बहुत कम है। सपोज़ नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आपका ऐसे होता है, यहाँ पर आप गैप देख रहे हो, दोनों ही रिग्रेशन लाइंस में बहुत ज़्यादा गैप है। जब ज़्यादा गैप होता है, इट मीन्स यहाँ पर जो है लो डिग्री का रिलेशन है, एंड अगर
कम गैप रहता है इट मीन्स वो मॉडरेट डिग्री हाई डिग्री का है. सो जितनी ज़्यादा रिग्रेशन लाइन्स एक दूसरे के क्लोज होंगी उतना ही ज़्यादा हाई डिग्री का वेरिएबल्स में कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा, राइट. सो दीज आर द थिंग्स कि कैसे आप ग्राफ की हेल्प से भी, अगर आपके पास रिग्रेशन लाइन्स हैं, आपने उन्हें ग्राफ पे प्लॉट किया है, उस केस में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेरिएबल्स में कोरिलेशन क्या है. Okay, so this is the additional topic which I have explained to you in order to make you understand this concept even more clearly. I hope this video is clear to you, this topic is clear to you now, and I really hope कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, एंड अगर आपके पास कोई और सजेशन है for me to make a video on any particular topic, right, related to statistics or the commerce topic, you can just let me know in the comment section below. I will definitely try to create my next video very soon on that particular topic only. Okay, so I hope ये video आपको अच्छे से clear हुई है. I was able to make you understand the topic in a simpler and easier manner. Okay, if you like the video, do hit the like button and share it with your friends. So I'll be back with the next video very soon. Till then, stay happy and stay motivated. And thank you so much for watching.